dust has engulfed this entire region, and in the visuals you can see water sprinklers that the society members and the authority peoples are continuously we felt that tremble over here, and the moments after that the wind started blowing towards north-south, what we had reported also earlier. Today is a very windy day in Noida and in the adjoining areas, and what we can see is the continuously the authorities are sprinkling water over here, and the dust clouds has actually engulfed. I am just going to go through to Mr. Avnish Awasthi, who is back with me on the broadcast. Mr. Awasthi, now never before seen demolition of the Twin Towers, as high, the highest in the country. This is what India has seen, and this was a very, very tricky demolition. Now that it's finally taking place, it has been achieved. Now comes the next step, to actually take stock of the situation after the demolition and the dissipation of the dust cover that it has left. Well, the local administration, the Industrial Development Authority, the local police, they are all ready for post-demolition. You will see that immediate action will be taken to settle the dust, and then the rubble, the material which has come from this entire demolition will be removed over a period of. Now the cloud of dust has engulfed this entire region, and in the visuals you can see water sprinklers that the society members and the authority peoples are continuously we felt that tremble over here, and the moments after that the wind started blowing towards north-south, what we had reported also earlier. Today is a very windy day in Noida and in the adjoining areas, and what we can see is the continuously the authorities are sprinkling water over here, and the dust clouds has actually engulfed. I am just going to go through to Mr. Avnish Awasthi, who is back with me on the broadcast. Mr. Awasthi, now never before seen demolition of the Twin Towers, as high, the highest in the country. This is what India has seen, and this was a very, very tricky demolition. Now that it's finally taking place, it has being achieved. Now comes the next. आसपास जो छोटी छोटी दूसरी इमारतें आप देख पा रहे हैं, जैसे ही ये बिल्डिंग धराशायी होती है उसके तुरंत बाद वहां की तस्वीर बिल्कुल अलग हो जाती है। चारों तरफ धुएं का गुबार, और आज तक ने अगर ये स्पेशल कैमरे यहाँ पर नहीं लगाए होते तो यकीनन हमारे जो नॉर्मल कैमरे हैं उनके जरिए इन तस्वीरों को कैद कर पाना काफी मुश्किल होता। बिल्कुल साफ स्पष्ट तस्वीरें आप देख पा रहे हैं हमारे स्पेशल कैमरे के नजर से, और ये तस्वीरें आपको दिखा रही हैं। और दूसरी तस्वीरें इस वक्त आप देखिए, चीथड़े उड़ गए हैं उन तमाम कपड़ों के जो लगाए गए थे। अगल बगल की दूसरी कहा जा रहा है कि 4 दूसरी इमारतें जो सुपर टेक की हैं पीछे, जो एक अलग बिल्डिंग वहां पर मौजूद तमाम लोगों को हटाया गया। पहले ही एहतियातन ये कदम उठाए गए, जवाब बना है इन तस्वीरों का। आज जवाब पाया है भ्रष्टाचार की उस इमारत को अपनी आंखों के सामने गिरते हुए देखने का, जिसके जरिए कम से कम उम्मीद हम कर सकते हैं कि आगे आने वाले वक्त में दोबारा इस तरह की परिस्थिति नहीं बने हिंदुस्तान के भीतर, चाहे वो कोई भी हिस्सा हो, चाहे वो नोएडा हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे कोच्चि में भी। आपको बताते चले 18 मंजिला एक इमारत को इसी तरह से गिराया गया था। हालांकि उसके बाद उसके मलबे को हटाने में काफी लंबा वक्त लग गया था। अब यहां पर भी मलबे को हटाने में काफी लंबा समय लगेगा, और आसपास जैसा कि मैं देख पा रही हूं अभी भी भारी तादाद में लोगों की मौजूदगी है जो इस पल का गवाह बनने के लिए यहाँ पर खड़े हुए थे। सायरन की आवाज लगातार वहां पर बजती हुई सुनी जा रही थी जब इस बिल्डिंग को गिराया गया, और मैं जो अपनी आंखों से देख पा रही हूँ मलबे का ढेर बहुत दूर तक फैला हुआ नजर आ रहा है। मलबे का ढेर, आपको बता दें कि कल रात में हम लोग जिन हिस्सों में पहुंचे हुए थे रिपोर्टिंग करने के लिए, जहां पर पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी हुई थी, तस्वीरों में मैं देख पा रही हूँ कि मलबे का एक बड़ा हिस्सा वहां पर भी आकर गिरा हुआ है। यानी कि सिर्फ एक जगह जहां पर इस बिल्डिंग को बनाया गया था, सिर्फ वहां नहीं, वहां से कई मीटर दूरी तक मलबे के हिस्से को हम देख पा रहे हैं। और उम्मीद यही कर सकते हैं कि कम से कम सभी सुरक्षित हों, जितने भी लोग इस ऑपरेशन में लगे हुए थे सभी पूरी तरह से सुरक्षित हों, किसी भी तरह की कोई तस्वीर नहीं हो। आगे की ओर ये इमारत गिरी है। विपुल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हरीश त्रिपाठी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विपुल जी, जल्दी से आपकी टिप्पणी, ये तस्वीरें क्या कहती हैं? आगे की तरफ ये बिल्डिंग गिरी है,
आगे की तरफ बिल्कुल कि जैसा लगता है जैसा प्लान था हाँ। उस तरीके से ही बिल्डिंग गिरी है। पहले छोटी बिल्डिंग को ब्लास्ट किया गया है हाँ। और बहुत कम मिली सेकंड में फिर दूसरी बिल्डिंग को। खतरा ये था कि ये बिल्डिंग जो रिहायशी इलाका है उस तरफ अगल ना बगल गिरे। लेफ्ट और राइट में किसी बिल्डिंग को फिलहाल अभी तक कोई नुकसान पहुंचता हुआ नहीं नजर आ रहा अभी है। नहीं दिख रहा है क्योंकि हाँ। ये जो बिल्डिंग का जो टूटा हुआ हिस्सा है वो सड़क की तरफ गिरा है जी। जो प्लान था। बिल्कुल। और मुझे लग रहा है कि बहुत ही कल सक्सेसफुल रात में जब मैं ब्लास्ट है। पहुंची थी वहां पर तो वहां पर बाकायदा बैरिकेड्स करके पुलिस वालों की वहां पर भारी तादाद में मौजूदगी थी और इस वक्त लग रहा है कि वो हिस्सा हालांकि पुलिस वाले उस पूरे एरिया को खाली करा लिया गया था और काफी दूर से रिमोट के जरिए इस लेकिन ब्लास्ट को बहुत अंजाम दिया successful गया। blast है। सक्सेसफुल ब्लास्ट है, आप Blast इसको successful कहेंगे है। सक्सेसफुल ब्लास्ट है। बहुत आप क्या कहेंगे हरीश त्रिपाठी जी? नहीं, देखिए मैं अभी इट विल बी टू अर्ली टू से कि पूरा सक्सेसफुल है। एक पार्ट तो सक्सेस है कि अभी जो प्राइमा फेसी नजर आ रहा है कि मलबा जो है दूसरी बिल्डिंगों पे नहीं गया है, लेकिन वाइब्रेशंस का क्या असर हुआ है वो स्टिल अभी देखने वाली। वाइब्रेशन तो हमने भी महसूस किया यहाँ मतलब पर, बिल्कुल वाइब्रेशंस महसूस का किया। उन बिल्डिंग्स पे क्या असर हुआ है वो देखने वाली बात धराशायी है। हो रही थी, हम लोग इसी स्टेज पर घुटनों के बल बैठे हुए थे और फिर उस वाइब्रेशन को हमने यहाँ तक महसूस किया है। जी, अपनी जी, बात जी, को जी। आगे बढ़ाएं। तो वो अभी मेन जो पोस्ट डिमोलिशन जो ऑडिट